Mandal Elections 2024. Please, I would request not to come in the front view. I thank the Honorable Commission for taking time out from their busy schedule to brief the media today. This presser is being telecast live on ECI's social media platforms also. We have with us here the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Sir. The Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal Sir couldn't join the PC because of some health. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters in Delhi. We also have the CEO West Bengal, Dr. Aftab Sir. I am Shri Anuj Chandak, Joint Director Media for the Honorable Commission. The format is as per following. There will be opening remarks by CEC along with a presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When anyone of the media want to ask a question, kindly raise your hand. Wait for your chance to be called out to put your question. Also introduce your name and organization. The micer will come to you. Please keep your mobile phones on silent mode. Sir, I request you to kindly deliver your remarks, sir. Chief Electoral Officer of West Bengal, Shri Ariz Aftab, my senior colleagues from the Commission, and friends in very large number from press. A very good morning to you all. Namaskar. First of all, I extend a very warm greetings to each one of you. And we gather here today to discuss the review, to discuss what we did in last 2 days, and tell you about the poll preparedness in West Bengal and in the country in general. West Bengal is the state famous for its celebration and festivities. As you know, there is a popular Bengali saying, "Bara maso, tera parvo." So the election is the 14th parv. जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है वो भी एक पर्व है और वो आपके सामने है. प्लीज ज्वाइन इन दिस पर्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट थ्रू यू all the voters of West Bengal to join in this coming festival of democracy in an extremely friendly environment and in large numbers. The Commission has its priority, very, very clear priority. Free elections, transparently done, violence free, inducement free. This is what is the focus. How do we do that? And what we discussed in last 2 days, that I will brief you all. There is no place for fear, intimidation or violence in elections. We are determined to make the experience of voting for all the citizens, all the voters, very, very festive and devoid of any kind of a fear or inducement. How would we do that? What political parties mentioned to us, I will all brief you about this. तो साथियों, 2 दिन में हमने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत की, सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज से बात की और डीएम्स, एसपीज, आईजीज, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, डीजी सबसे बातचीत की, सबसे रिव्यू किया. द पॉलिटिकल पार्टीज हु केम टू मीट अस वर नेशनल पार्टीज लाइक आप, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनपीपी, और स्टेट पार्टीज में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. तो इन सब पार्टीज ने क्या कहा, व्हाट डिड दे आस्क अस, और उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से क्या उनके सुझाव हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ये भी आपके माध्यम से बताऊंगा. सो फर्स्ट, पार्टीज सेड दैट देयर मस्ट बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड and free, fair and violence-free elections. All the parties mentioned about this. The points they raised was that bureaucracy is not perceived to be neutral. It is compromised and biased. This is what majority of the political parties mentioned. They said lower bureaucracy in particular is not aligned to the free elections and providing level playing field.
They say the partial conduct of some of the officers in the recently held elections of other than Legislative Assembly and Parliament must be looked at. There were partisan role of some of the officers and there were strictures against them. ये भी कहा कि जो ट्रांसफर्स पॉलिसी है कमीशन की वो सही से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो. One of the party even raised the issue that false cases are filed and even at times nobody is spared. So generally they said थोड़ा भय का वातावरण है इसलिए इसको ठीक करने की कमीशन कोशिश करे. They said the violence pre-poll, during the poll and after the poll must be curbed. The international borders should be guarded well so that there is no possibility of any kind of nuisance from that side. उनका ये भी कहना था कि वोटर्स का इंटिमिडेशन डिफरेंट फॉर्म में होता है, खासतौर से 7-8 दिन पहले इलेक्शन के, उसको रोका जाए. बहुत से इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऐसे हैं जो वोटिंग को रोकने की और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं बॉम्ब थ्रो करने की, मोलेस्टेशन की या इंटिमिडेशन की, उनको रोका जाए. All parties except one asked for adequate deployment of CAPF on all the places for controlling law and order. जो चुनाव का प्रोसेस होगा उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी कि सीसीटीवी कैमरास ज्यादा से ज्यादा जगह पर लगाए जाएं. रैलीज की जो परमिशन है या जो भी सुविधाएं पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं दे मस्ट बी गिवन ऑनलाइन सो दैट जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टीसन बिहेवियर ना कर सकें. तो मैं इन सब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इनका जवाब भी मैं आपको अपने बात के एड्रेस में दूंगा. ऑब्जर्वर्स को अधिक से अधिक लगाया जाए और उनके नंबर, फोन नंबर्स पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाएं ताकि उनसे जब जरूरत हो संपर्क किया जा सके. कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो स्टेट में काम करता है, जो सिविक पुलिस है, जो ग्रीन पुलिस है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उसको चुनाव में ना लगाया जाए. चुनाव में होने वाली इंपर्सोनेशन को रोका जाए. किसी भी एजेंट को बूथ से ना हटाया जाए, ऐसे इंश्योर किया जाए. कुछ पार्टीज का कहना था कि इलेक्शन को एक फेज में किया जाए. यह भी कहना था कि आधार कार्ड अगर कैंसिल हो जाते हैं तो वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. और यह भी उनका कहना था कि ईवीएम की मशीन्स का प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाए, उनको लाने ले जाने में और उनको रखने की जगह का सिक्योरिटी सफिशिएंट तरीके से किया जाए. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ व्हाट ईच पॉइंट वाइज we have given very, very strong instructions in no uncertain terms to the entire bureaucracy कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनका काम है. किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है. कमीशन इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू एंश्योर दैट voters enjoy the voting. It's a festival. It's not an environment where you are fearful of exercising your right. So this we are determined to establish everywhere. Partisan attitude of the bureaucracy, senior, middle and lower, is a no-go area, will not be tolerated. हमने उनको बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अपने नीचे जितनी भी हायरार्कीज हैं, चाहे वो एसएचओज हों, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो रेवेन्यू की हों, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में इंश्योर करें. अगर वो करेंगे ठीक है, वो नहीं करेंगे तो हम उनसे करवाएंगे और उनको जिम्मेदार ठहराएंगे. So friends, before I answer everything, all these points, let me give you an overview of the election process and election numbers in Bengal. There are 42 parliamentary constituencies, of which 30 are general, 10 SC and 2 ST. If you look at the electors in Bengal, there are total 7.58 crore voters. All these slides would be sent to you immediately after this so that you can use them. Male being 3.85 and female 3.73 crore.
We have 4.92 PWD electors. 85 plus electors are 4.86, and you would be happy. There are 5,400 electors who are of the age 100 and plus. That also says about the good in the society. First time voters are now 15.25 lakh. We have done a lot of work to enroll the young voters and the women. Electoral gender ratio in the state has improved to 968, and there are 90 assembly constituencies, 90, where the number of women is more than 1,000. And in 18 to 19 years also their number has increased. So this is 6.57 lakhs. तो जो अभी सर्वे हुआ था उसकी वजह से यंग बच्चों पर और उसमें से गर्ल्स पर बहुत ही फोकस था. If I tell you about the youth, 294 dedicated election-related AEROs were appointed so that they can focus on youth. And there are even advanced applications of the youth which we have received. अगर मैं आपको particularly vulnerable tribal groups के बारे में बताऊं, तो वो 3 PVTGs हैं बंगाल में और उनका 18 प्लस की जितनी पॉपुलेशन है उनका एनरोलमेंट किया गया है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग, पूरे इलेक्ट्रल रोल में जिसको होना चाहिए वो हो, यूथ, विमेन, PWDs, 80 प्लस, 85 प्लस, 100 प्लस, ट्रांसजेंडर्स, PVTGs. It is a mosaic which is of the which shows inclusivity, which shows purity, and which shows the health of the electoral roll. And we are happy to go to the elections with a very, very robust, happy electoral roll. Now, if I give you the details about the polling stations, the total number is 80,453. Average voters are 943 in each of the polling station. Rural polling stations are much more than the urban, and we will do at least 50% webcasting of all the polling stations. At least 50%. We can even do more. कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा, कर्मियों के द्वारा स्थापित होंगे. हम कोशिश करेंगे कि उसमें पुलिस फोर्स भी महिलाओं की हो. ये उनके एक एम्पावरमेंट को प्रदर्शित करने का तरीका. इसी तरीके से कुछ पोलिंग स्टेशंस होंगे जो सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से एस्टेब्लिश होंगे, ताकि हम समाज में एक ये भी उदाहरण प्रस्तुत करें कि दे आर नो लेस देन एनीबडी एल्स एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्शंस एंड डू एनीथिंग इन लाइफ एज एनी वन ऑफ अस कैन डू. आपका वोटर्स का एक्सपीरियंस हमारे पोलिंग स्टेशंस में अच्छा हो, इसके लिए बहुत तैयारी की जा रही है. एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए बूथ्स विल बी हैविंग, all booths will be on ground floor, will have toilet, will have ramp, wheelchairs, electricity, toilets, drinking water, and also shade, because it would be a season of, there would be a lot of heat during that season. So, persons with disability के लिए wheelchair भी रहेगी, वहाँ एक volunteer भी रहेगा, और एक फॉर्म 12D भर के अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें घर से वोट देना है और उनकी 40% से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तो उनको हम घर से भी वोट देने की सुविधा देंगे. और उसी प्रकार से जो हमारे एल्डर्स हैं उनमें अगर 85 प्लस के जितने भी एल्डर्स हैं उनको भी हम घर से वोट देने की सुविधा देंगे. हालांकि एक्सपीरियंस ये है कि लोग फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में बूथ पर ही आना चाहते हैं. फ्रेंड्स, इफ आई गो टू द नेक्स्ट, हम इन चुनावों में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं. एक आपको सिर्फ 2-3 के बारे में मैं जरूर बता दूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये पता लग सके. एक वोटर हेल्पलाइन है, इसमें आप सब चीज देख सकते हैं. किसी वोटर को अपना पोलिंग स्टेशन देखना है, अगर उसका मोबाइल नंबर अंदर में है सीडेड, तो वो एपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, BLO से भी कनेक्ट हो सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच कर सकते हैं. Another important application is C-Vigil, Citizens Be Vigilant. इसमें आपका सहयोग खास तौर से हमें चाहिए. अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लीकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें. जहां से भी भेजा गया
वहां का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया। सो प्लीज पॉपुलराइज दिस। आई वुड रिक्वेस्ट दी जितने भी जागरूक सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं बंगाल के, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो प्लीज हेल्प अस एंड वी गारंटी दैट आवर टीम विल रीच इन राइट टाइम एंड लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग। जो कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको सुविधाओं की बराबर में मिलनी चाहिए, जो मांग थी उनकी, तो उनकी ये मांग हम सुविधा पोर्टल से पूरी करेंगे। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एक ग्राउंड को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समय में मांगा कि हमें इस तिथि को, इस डेट को, इस समय पर ये चाहिए, उसको वही समय पर मिलेगा, जो सेकंड पर्सन विल नॉट गेट इट। सो दिस विल एस्टेब्लिश द लेवल प्लेइंग फील्ड in allotment of all the entitlements to the political parties and candidates. Friends, this is another very important right which the citizens have to know your candidate. किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन में उनकी फोटो, उनको क्या क्या उनके ऊपर में क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इस सबका पता लगेगा। Citizens can go to this app and see कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देख सकते हैं, उनका एफिडेविट्स भी इसी जगह में देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। और कैंडिडेट को 3 बार न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर दैट वो ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वाई इट वॉज ए नेसेसिटी दैट दे choose somebody who has a criminal background. So friends, please convey this, expand this, amplify this particular app so that people can see, they have a right to know about their candidate, they can know about their candidate. हमने पूरे चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने के लिए अगेन एक पोर्टल बनाया है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, सब इस पोर्टल पे हैं। सबको क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट में जो इंटरनेशनल और बॉर्डर्स हैं उन पर बहुत ही सख्त विजिल रखने की स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देयर वुड बी पुलिस चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, एक्साइज चेक पोस्ट, कस्टम चेक पोस्ट एंड इन टोटल देयर वुड बी अराउंड 151 चेक पोस्ट। और इसके अतिरिक्त SSB, BSF और अदर एजेंसीज, कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स ये भी बहुत सख्त तरीके से इन दिनों में बॉर्डर पे चेकबाल रखेंगे, ऑल द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अगर क्या उनको डायरेक्शन दी गई है मैं आपको बताऊं तो आज की मीटिंग में सुबह में सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को बुलाया गया था, स्टेट पुलिस, एक्साइज, GST, नारकोटिक्स, SSB, BSF, कोस्ट गार्ड्स, DRI, एवरीवन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे कहा गया है कि मनी पावर पर बॉर्डर से किसी भी तरीके की ड्रग आने पर, लोगों के इधर से उधर आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और लीकर, ड्रग्स, फ्रीबीज को पूरी तरीके से रोकेंगे। चुनाव बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। इसमें जो भी चीज लाने की लोग कोशिश करें, खासतौर से ड्रग, किसी भी नॉर्थ ईस्ट से आए, बॉर्डर से आए, मेनलैंड से आए, उसको 100% रोकने का प्रयास करेंगे। एंड दिस एक्शन यू विल सी इन टाइम्स टू कम। कार्रवाई भी छोटे लोगों के साथ साथ बड़े लोगों पर करें, जो किंग पिन्स हैं उन पर करें। ऐसा नहीं कि जो ड्रग और लिकर लेके लोग पेडलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, उन पर ना करें, बल्कि उन पर तो करें ही, लेकिन जो किंग पिन्स हैं उसके पीछे में हैं उन पर करें। SLBC को कहा गया है, बैंकर्स को, कि कैश का मूवमेंट उनकी वैन्स में 5 बजे के बाद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में, वैन्स में, इन सब में कोई भी कैश लेके इधर से उधर जाने की कोशिश करे। राज्य में जितने भी हेलीपैड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर स्ट्रिक्ट विजिल रहेगी, चेकिंग होगी, उन पर फोर्स रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी जब हेलीकॉप्टर्स को या प्लेन्स को अपने अपने एरिया में उतरने की परमिशन देंगे तो वो इनकम टैक्स को बताएंगे और
BCS जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सूचना देता है वो भी खास तौर से देंगे ताकि उस पर भी विजिल रखा जा सके। वेयर हाउसेज जितने भी हैं उस पर GST देखभाल रखेगी। सो ऑल द एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड नॉट इन साइलोज so as to ensure that elections are not only violence free but also inducement free. How it will be violence free, I'll come to the next, what the district magistrates and SSPs have been told. Absolutely, this is what political parties ask, and strong instructions have been given very clear to the district magistrate, SPs, IGs, all the senior officers that they have to be impartial, transparent and accessible to all political parties equally to provide level playing field. उनको ये भी कहा गया है कि अभी से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रेगुलर मीटिंग करें और वो रेगुलर मीटिंग करते करते उनको बुलाएं और उनकी जो भी शिकायतें उसको सुने और उसका लिखित जवाब वापस उनको दें। वी वर्क ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। We disclose whatever we do, we disclose. We involve whatever any stakeholder wants to tell us. We listen to political parties, candidate, involve and give them a reply. Media is present in all our activities every time. Movement ho, ER roll ho, machines ka movement ho, everywhere media is involved. So it's transparency, transparency, transparency. Police officials and these district level officials have been told कि नीचे के स्तर पर पुलिस स्टेशंस, रेवेन्यू स्टाफ, एक्साइज स्टाफ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको जो काम उनको करना है वो काम करें और उसके अतिरिक्त कुछ इधर उधर की चीजें ना करें। ये स्पष्ट बताया गया है। अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दे आर लायबल टू बी टेकन एक्शन अगेंस्ट। There is absolutely zero tolerance to any violence in democracy, and this is what has been very, very clearly, repeatedly, forcefully explained, and they have all committed to us that they will do it. We will see that it gets implemented, and if any mid-course correction has to be done, we will not hesitate in doing. Sufficient CAPF will come. It will be deployed in a impartial manner. How will it be deployed? The SPNO from the state police nodal officer, CO, Mr. Arij, and the central observer who will come. 3 of them will decide the CAPF where it should go, what is the requirement. तो तीनों CO साहब रहेंगे, स्टेट के पुलिस नोडल अफसर रहेंगे, सेंट्रल के ऑब्जर्वर हमारे ऑब्जर्वर रहेंगे, तीनों मिलकर करेंगे ताकि कहीं कोई पार्शियलिटी का प्रश्न आए। और जब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भी DM, SP और सेंट्रल ऑब्जर्वर मिलकर करेंगे ताकि अगेन उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। CAPF का प्लान भी हम सबसे शेयर करेंगे, कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ताकि उनके ऊपर ऐसा कोई ना कहे कि आपने इधर भेजा उधर नहीं भेजा। सबको वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स कम से कम 5-6 दिन पहले सबको मिलेंगी। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो उसको और 12-13 हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उन सबकी मदद से भी वो वोट डाल सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू कीप द ID कार्ड। ये एपिक के साथ भी है, अगर बाई चांस नहीं है और वोटर स्लिप आई है तब भी वो वोट डाल सकते हैं। इम्पर्सोनेशन या जिसको यहाँ छापा वोटर भी बोलते हैं, वो सबको रोकने के लिए बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर कोई इम्पर्सोनेशन की कोशिश करे, डुप्लीकेट वोट डालने की कोशिश करे, छापा वोटिंग की कोशिश करे तो इमीडिएटली सेक्शंस रिलेवेंट हैं IPC की, उनमें क्रिमिनल केस करें, उनको रोकें। जितनी भी पार्टीज अब से लेके आगे तक कंप्लेंट्स करती हैं डिस्ट्रिक्ट में या CO साहब के यहाँ, उनका निराकरण करके उनको लिखित जवाब दिया जाए कि आपने ये कहा था, ये सच पाया गया, इस पर ये एक्शन हुआ, ये सच नहीं पाया गया, आपने गलत शिकायत की थी। ऑल स्टोरेज ऑफ द EVMs विल बी बाई ए 3-tier सिक्योरिटी रिंग। Inner ring of the CAPF, outer ring of the state armed police and the further outer ring of the state police. बहुत सारी फेक न्यूज इस समय में, चुनाव के समय में चलती है। फेक न्यूज को रोकने के लिए अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द IT Act, IPC, the mechanisms have been put in place
There is a control room in every district which will be set up, an integrated control room, which will keep seeing the media, what is happening, which will keep seeing the CCTV footage, which will look at complaints coming from 1950, which will look at various social media handles to know what is happening, what is the negative narrative coming, and what is the information coming. We will tackle it very, very strongly and very, very methodically. So friends, हम लोग पूरी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है। आपके माध्यम से मैं सभी बंगाल के सभी वोटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, उनसे गुहार लगाना चाहता हूं कि वो वोटिंग करने जरूर आए और प्रलोभन मुक्त माहौल में आए। अगर कहीं ऐसी जरूरत होगी जिससे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड या प्रलोभन या वायलेंस होगी, हम कॉन्स्टेंटली नजर रखेंगे, इंटरवीन करेंगे। मीडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज वी हैव इन द इलेक्शन कमीशन, बिकॉज आपके थ्रू हम बात सुनते हैं, हमें पता लगती है और आप ही के थ्रू हम अपनी बात इतने बड़े इलेक्टरेट्स को पहुंचाते हैं। सो प्लीज हमारी वोटिंग की अपील, सी विजिल का ऐप, नो योर कैंडिडेट, यंग वोटर्स, महिला वोटर्स से अपील को भी आप आगे तक पहुंचाएं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir for those very detailed remarks. The floor is now open for questions. I would request to please peacefully raise your hands. Michael will come to you. We will take few questions in a single round. आपके पास please. Yeah. Please introduce yourself and ask your question. मेरा नाम संजय सूर है, मैं और प्लस न्यूज से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि सर पूरा देश में सिर्फ वेस्ट बंगाल में एक सेकंड, आवाज में पूछ रहा आपकी आवाज इको कर रही है, माइक थोड़ा सा दूर कर लीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? थोड़ा दूर रखना। कैन यू हियर मी? यस, बेटर। सर आप पूरा देश में सिर्फ वेस्ट बंगाल में करीब 900 से ज्यादा सीआरपीएफ का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि पूरा देश में सिर्फ वेस्ट बंगाल ऐसा एक स्टेट है जो सबसे डिस्टर्ब स्टेट है? नेक्स्ट प्लीज मैडम। प्लीज सर माइक प्लीज दिस साइड। एक सेकंड, विल कम। या प्लीज, ही विल कम। नो, ही इज कमिंग टू। Hello. ही इज कमिंग टू। Am I audible? लोगों से बात की, एसपीडीएम से बात की, तो इस बातचीत के बाद आप लोगों का क्या सोच है बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? ये पहला चीज़ है। और दूसरा जो सवाल है कि यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने 1 दिन की पोल की मांग की है, तो उसके बारे में भी आपका क्या सोच है सर? थैंक यू। प्लीज दैट साइड बैक। माइकल प्लीज उनके पास जाइए। मैं मृणाल सरकार, थोड़ा दूर रखिए, माइक दूर रखिए। मैं मृणाल सरकार बोल रहा हूँ, फ्रीलांस रिपोर्टर। माइक थोड़ा दूर रखिए, आप मुंह से दूर रखिए माइक। मुंह से थोड़ा नीचे कर लीजिए। अब ठीक है जी, बेटर है। असल में बात ऐसी है कि हर साल और हर बार आप लोग आते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ इंतजाम कर लिया है, फिर भी कुछ ना कुछ घटना घटती जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। किसी भी टाइम इस पर वेस्ट बंगाल में चुनाव पूरी पीसफुली नहीं होता है। क्या आप बोल सकते हैं कि इस साल क्या पश्चिम बंगाल में पीसफुली ये चुनाव होगा? आप मैडम प्लीज। So we take one more question. One more, Sir, hi, my name is Moitri. I am from News 18 Bangla. Sir, I have 2 questions. First is, you have included Enforcement Directorate in the District Intelligence Committee. Why you think that ED is necessary to be included in District Intelligence Committee? Number 1. And number 2, you have asked central agencies to rely on their own intelligence, not to rely on state intelligence. Why you think that that is...
Thank you.